Hello friends, myself Meenu Kapoor. Today I will tell you how to conduct online subjective examination using Google Form. In my previous videos, I told you how to create MCQ type test using Google Form. But now we want to conduct subjective exam. So in this video, you will learn how to set a subjective question paper using the Google Form. Basically, it's a mixed paper. I mean, some questions are objective type and some are subjective type. So, let's start with the procedure. So, I have opened my previous form that you already know how to create. With some changes, that is, I will add some subjective portion in the same Google Form. I hope you know how to create objective type paper and how to do the settings and all. But still we will repeat it quickly. First of all, you will open Google Form. After opening the Google Form, you will create a new form. You will give the title here. Say I have given sample subjective test half yearly examination. You will give the title, and if you want to give the description, say session, maximum marks, time and special instructions for the students. This you can add in description part. This you have already done. To change this image and the background color, you have to click on this palette. Again, you are very clear with all this. From here you can change the color, and from here you can upload the image. We will not go in details because we have already covered this portion, right? And after that, this is for settings. For settings, we will again revise the settings. In general, we will click on collect email address, as it is, I always prefer to collect email addresses because we always want that students should give only one response. This option, limit to one response. And if we click on this option, then automatically this form will collect the email address. Response receipt, always we should click on this. Presentation, so show progress bar, you can click on this. Shuffle question order, in previous video I told you we don't prefer this because if you are giving the numbering with the questions, then it will be also shuffled. So this is your choice. If you want to shuffle the question order, you can click, otherwise you can avoid. This is the confirmation message. By default, you have noticed that this message appears after filling the form. Your response has been recorded. If you want to change the confirmation message, you can click here and type the message. You are done with the exam. All the best for results, right? So you can change the confirmation message also. Now when the student will submit the test, this message will appear after submission, right? So this can be changed, but it is optional. Otherwise default message will appear. Quiz, as I told you, it is a mixed exam. Initially we will give MCQ, जैसे कि हमारा CBSE का पैटर्न होता है. पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस, और उसके बाद में सब्जेक्टिव पेपर आता है. तो हम इसको एक क्विज बनाएंगे as usual, जैसे हमने पहले भी किया था. तो we will click on this option, make a quiz. Release grade. Immediate after each submission, no. एक क्रेज बना रहना चाहिए, रिजल्ट स्कूल से ही जाना चाहिए. तो हम किस पे क्लिक करते हैं, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू. और इस पेपर में तो कंपलसरी है बिकॉज हम सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं, तो मैनुअल रिव्यू इज मस्ट, राइट. ये सब सेटिंग्स करने के बाद वी विल क्लिक ऑन सेव बटन. क्लियर? एज यू नो, फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट फील्ड ईमेल एड्रेस आएगा बिकॉज हमने कहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग्स में कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया है. सो आफ्टर गिविंग द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ रहा होगा. आफ्टर दैट यू विल गिव द अदर फील्ड्स. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जनरली पेपर को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे.
पहला सेक्शन जो हमने बनाया था इट वॉज फॉर जनरल एंट्रीज, नेम, एडमिशन नंबर एट्सेट्रा। तो फर्स्ट सेक्शन हम एज यूजुअल वही बनाया है हमने, नेम इन कैपिटल लेटर, इट इज़ शॉर्ट आंसर। और हमें याद रखना है जो हमने लास्ट टाइम भी याद रखा था कि क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। आंसर की कोई नहीं होगी बिकॉज इट्स अ जनरल एंट्री, इसके लिए कोई मार्क्स हमें अवॉर्ड नहीं करने हैं। यहाँ से हमें ध्यान रखना है नेम के लिए हमें शॉर्ट आंसर चूज करना है। सेकेंड फील्ड हमने लिया है एसआर नंबर और एडमिशन नंबर, ये भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये भी शॉर्ट आंसर होगा। हाँ, आप कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हैं और ये सेकेंड पार्ट हमारा इसमें वैलिडेशंस के लिए होता है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे नंबर लेना है या टेक्स्ट लेना है। गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि एडमिशन नंबर है तो ये नंबर ही होना चाहिए, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर से ज़्यादा होना चाहिए तो आप यहाँ पे कंडीशन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 100 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको इसकी कोई नीड नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं शॉर्ट आंसर में और रिक्वायर्ड आंसर की 0 पॉइंट। थर्ड हमने फील्ड ली थी पहले भी, सेक्शन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी है हमने और सेक्शंस के मल्टीपल चॉइस आंसर्स हमने दे देने हैं ABCDEFGH, जहाँ तक भी हमें सेक्शंस रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पर देने हैं। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट सेक्शन में जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद हमने इस बटन पे क्लिक करके करना है ऐड सेक्शन। ये बटन की हमें पहचान है, पेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इट इज़ फॉर एडिंग अ न्यू सेक्शन इन द फॉर्म। वी विल क्लिक ऑन इट एंड सेकेंड पेज हम किसका बनाने वाले हैं, MCQ पोर्शन का। और थर्ड सेक्शन हम बनाएंगे अपने डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो यहाँ तक का हमारा पार्ट 2 तक हमारा ऑलरेडी क्लियर है बिकॉज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। स्टिल आई एम रिपीटिंग सम पॉइंट्स, राइट, क्विकली। सेक्शन 2 में हमने डिस्क्रिप्शन, ये हमारा टाइटल हो गया सेक्शन 2 का, टेस्ट MCQ। यहाँ पे टाइटल लिखा आएगा, आपने लिख देना है टेस्ट MCQ। डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देने हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, टोटल क्वेश्चंस 10, 1 मार्क ईच। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। आपके CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस आपको MCQ देने हैं 1 बाय 1 यू विल बी एडिंग द MCQ क्वेश्चंस। और MCQ कैसे दिए जाते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे, क्वेश्चन टाइप करने के बाद हम यहाँ से चूज़ करेंगे मल्टीपल चॉइस, राइट। मल्टीपल चॉइस के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हम एक एक करके यहाँ पे क्या दे देंगे, अपने ऑप्शंस दे देंगे। सपोज मुझे 4 ऑप्शंस देने हैं, हमने चारों ऑप्शन दे दिए। अगर हमें लगता है हमारे क्वेश्चन में कोई इमेज हमें देनी है, जैसे आइडेंटिफाई दिस इमेज, तो हम क्वेश्चन के आगे राइट साइड में ये इमेज का बटन बना है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारी जो इमेज है वो हमें कहाँ से लेनी है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ब्राउज में जाकर, ब्राउज में जाके हमारी जो भी इमेज होगी हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड अपलोड कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने टाइटल इमेज करी थी। बट अभी मुझे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट अपलोडिंग एनी इमेज हेयर, राइट। सो इस तरह से 1 बाय 1 आप, हाँ, सेकेंड थिंग इसको रिक्वायर्ड करेंगे। रिक्वायर्ड करने के बाद हमें क्या करना था, अब हमारा पेपर स्टार्ट हो गया है, अब हमें इसको मार्क्स भी देने हैं। तो हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। आंसर की में सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहे हैं, हमने इन्हें क्या कर देना है 1 या 2 पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट का हमने MCQ देना है वो यहाँ पे हम पॉइंट्स दे देंगे। आफ्टर दैट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वी विल टिक द राइट आंसर। सपोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने उसको क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है एंड वी विल क्लिक ऑन डन, राइट। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन
क्रिएट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जितने एमसीक्यू आपके आने हैं वो क्वेश्चंस आप एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे। एक मैं आपको इमेज वाला क्वेश्चन भी इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। आई एम डिलीटिंग दिस 10th क्वेश्चन सो दैट आई कैन ऐड इन फ्रंट ऑफ यू। 9 क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं, आई एम एडिंग 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कोई इमेज डालनी है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस इमेज and browse the image. Obviously I have to find some image now. I will see I have the image or not. Desktop, suppose this is my image. तो आप देखेंगे ये बार चल रहा है, इसका मतलब it is searching the image, और फाइनली आपकी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ऊपर आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हो, आइडेंटिफाई दिस इमेज, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन देने हैं आपको। यहाँ पे मैंने दे दिया गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म, राइट। इस तरह से आप इसके ऑप्शंस दे देते हैं। इज दैट क्लियर? अगेन आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। आंसर की पर जाएंगे और हमें सबको मालूम है ये किसका आइकन है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन इट। दिस इज गूगल फॉर्म ऑप्शन एंड वी विल क्लिक ऑन डन। इस तरह से आप इमेज क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद अब हमको मेन पार्ट स्टार्ट करना है, विच इज न्यू फॉर अस, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक थर्ड सेक्शन ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहीं से क्लिक करके ऐड कर लिया है। अब हमारे पास अपना क्वेश्चन पेपर कहीं टाइप्ड होना चाहिए जो कि सब्जेक्टिव है, राइट। इसको मैं 1 मिनट के लिए मिनिमाइज करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने MS वर्ड में एक अपना क्वेश्चन पेपर टाइप कर रखा है, राइट। दिस इज जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये मैंने टाइप कर रखा है MS वर्ड में। इसमें मुझे केवल डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेना है, तो मैंने ये पोर्शन हटा दिया है एंड ये मेरा मान लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है, राइट। इसको आपने क्या करना है, आपने वर्ड में ही इसको टाइप किया है, और बेटर रहता है कि हम बच्चे को वर्ड की फाइल ना देकर क्या दें, क्वेश्चन पेपर में PDF फाइल दें, नॉन एडिटेबल PDF फाइल दें। तो हमें इसको सेव करना है PDF फॉर्मेट में। जितने ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन है इसमें कन्वर्ट करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज आपको कहाँ करना है, यू नो हाउ टू सेव इट। से मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, और जब आप नीचे यहाँ पर देखेंगे सेव एज टाइप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा PDF। आपको इस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस में सेव कर देना है, PDF में। वर्ड डॉक्यूमेंट भी डाल सकते थे, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम क्या डालें, PDF फाइल डालें। ऑलरेडी मैंने जो पेपर बनाया था मैंने उसको सेव एज टाइप PDF कर दिया है। नाउ दिस इज सेव्ड इन PDF format, right? As you can see here, it is converted into PDF file, right? अब हम इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए, एंड यू कैन सी कि डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरी एक वर्ड की फाइल थी, सेम उसी नाम से मैंने क्या बना लिया, अपनी एक PDF फाइल बना ली है। अब क्या होता है, अगर हम गूगल फॉर्म की बात करते हैं तो गूगल फॉर्म में सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए अगर हम क्वेश्चन पेपर पूरा अपलोड करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फॉर्म हमें इसे एक इमेज फॉर्म में अपलोड करने की परमिशन देता है। एक डॉक्यूमेंट या एक PDF को अपलोड आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम गूगल क्लासरूम पे भी कर सकते हैं। अगर हम इमेज की फॉर्म में करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे क्वेश्चन पेपर सीनियर क्लासेस में आपके लेंदी हो सकते हैं, इंग्लिश के पेपर, हिंदी के पेपर, तो वो आपके एक पेज में फिट ज़्यादातर चांसेस यही है कि एक पेज में फिट
नहीं आएंगे। तो इमेज की फॉर्म में अगर आप लेंगे तो जितने पेजेस पे आपका पेपर जाएगा उतनी बार आपको वो पेपर अपलोड करना पड़ेगा और स्टूडेंट को उसकी आंसर की सेपरेट डालनी होगी, जिससे स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं हम वन गो में, सिंगल गो में पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चे को दें और बच्चा सिंगल आंसर शीट हमको रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने पेपर को, वैसे मैंने बताया बहुत मेथड है, बट सबसे अच्छा और इजीएस्ट मेथड ये है कि हम अपने पेपर को किस पे अपलोड कर दें, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें। आप सबको मालूम है गूगल ड्राइव पे अपलोड कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी अपलोड करके। एक बार मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेती हूँ। और आप अपनी गूगल ड्राइव में जाकर ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई है। मुझे क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को पहले कहाँ सेव करना है, ड्राइव में सेव करना है। ड्राइव में अपलोड कैसे करते हैं, ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है अपनी ड्राइव में और कर देना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर देना है। आपको मालूम है आपने अपनी फाइल कहाँ सेव करी थी, मैंने सेव करी थी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरी एक पीडीएफ फाइल थी, क्लास 12th CS असाइनमेंट। इसको मुझे सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। आप नोटिस करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो आप अपनी फाइल को यहाँ पर देख सकते हैं, it is done and you can find your file here, right? ये मेरी ये मेरी पीडीएफ है, क्लास 12th CS असाइनमेंट। अब आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म पर इस फाइल का लिंक कॉपी करना है, राइट। क्वेश्चन पेपर ये कितने भी पेजेस का होगा, अगर हम लिंक शेयर करते हैं तो हमारा इन वन गो पेपर क्या हो जाएगा, गूगल फॉर्म में शेयर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको देने होंगे एक्सेस राइट्स। तो आपको इस पेपर पे एक राइट क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करके आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, गेट लिंक, रेस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल एडिट कैन ओपन दिस लिंक। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्लिक करना है, एनीवन, रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है। रेस्ट्रिक्टेड के नीचे ऑप्शन है एनीवन विद द लिंक, यानी कि जिसको मैं लिंक शेयर करूँगी, मीन्स अपने स्टूडेंट्स को, वो इस पेपर को क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको व्यूअर राइट्स दिए हैं, एडिटर राइट्स नहीं दिए हैं। भूल के भी आपको एडिटर पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चे को पेपर चेंज नहीं करने दे रहे हो, आप बच्चे को पेपर व्यू करने का परमिशन दे रहे हो। तो आपको रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन हटा के किस पे क्लिक करना है, एनीवन विद द लिंक पर। कैसे किया था मैंने, ये ड्राइव पे जो मेरा क्वेश्चन पेपर है उसको राइट क्लिक किया था, शेयर पे क्लिक किया था और शेयर पे क्लिक करके क्या किया था, एनीवन विद द लिंक कैन यूज इट। बस इतनी सी परमिशन आपको ड्राइव में देनी है और वापस चले जाना है अपने गूगल फॉर्म के ऊपर। ये हमारा गूगल फॉर्म था। कहाँ से हम वापस गए थे, हमने सेक्शन 3 क्रिएट किया था और सेक्शन 3 पे हम टाइटल क्या देंगे, सेक्शन से
be descriptive questions। अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी और एनी इंस्ट्रक्शन यू कैन गिव हेयर। फिर से आप करेंगे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक। यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस नहीं देने हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बना लिया है और कहाँ पे अपलोड कर दिया, अपनी ड्राइव पर कर दिया और उसको राइट्स भी दे दिए हैं। अब आपको केवल उसका लिंक कॉपी करना है। तो जहाँ पे हम गए थे शेयर पे, वहाँ पर आता है ऑप्शन गेट लिंक, वहीं पर जहाँ से मैंने राइट्स दिए थे वहाँ पे मुझे किस पे क्लिक कर देना है, कॉपी लिंक पर। केवल मुझे इस बटन को क्लिक करना है, मेरा लिंक कॉपी हो चुका है। अपना जो मैंने क्वेश्चन इंसर्ट किया है वहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके अपने लिंक को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर इस लिंक को खोलने से आएगा, वो हमको लिखना है अपने डिस्क्रिप्शन में। क्या लिखना है, क्लिक द लिंक टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। आप पूरा लिख लेंगे, राइट योर आंसर शीट, स्कैन and create PDF and upload the file. So these are the steps जो हम बच्चे को अलग से भी इंस्ट्रक्शंस में भेजेंगे, बट आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन पेपर के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है और अपने आंसर उसकी आंसर शीट पे खुद से लिखने हैं, जैसे कि वो असाइनमेंट सबमिट कराता है। फिर उनको स्कैन करना है और क्या कर देनी है, PDF क्रिएट करके अपलोड करनी है। अब हम चाहते हैं कि बच्चा, ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, ये क्वेश्चन ना तो मल्टीपल चॉइस है ना ही शॉर्ट आंसर है। इस क्वेश्चन लिंक में पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर है और बच्चे को पूरा आंसर शीट यहाँ पर मुझे क्या करके देना है, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस की जगह आप चूज करेंगे ऑप्शन फाइल अपलोड। जैसे ही आप फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हम ये ऑप्शन आ जाएगा, लेट्स रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल टू ड्राइव। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको फाइल के टाइप्स दिखा देगा। हम बच्चों से क्या लेना चाहते हैं, प्रेफरेबली PDF, पर फिर भी आप डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। कोई बच्चा अगर वर्ड में भी करना चाहे, लेकिन वैसे हम लोग हमेशा रिटन प्रेफर करते हैं कि बच्चा हैंड रिटन दे और उसको स्कैन करके क्या क्रिएट कर दे, PDF। अगर आपको लगता है वो इमेज सबमिट करा सकता है, वैसे इमेज नहीं देना चाहिए, बिकॉज इमेज एक ही पेज की वो कर पाएगा। हमको पूरा आंसर शीट एक साथ चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक PDF। अगर आप दोनों ऑप्शन करना चाहते हैं तो दोनों दे सकते हैं, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर टू चूज PDF। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, वही मैंने आपसे कहा, अगर इमेज दे रहा है तो उसको मल्टीपल इमेजेस देनी पड़ेंगी, बट हम सिंगल PDF ले रहे हैं तो वी विल क्लिक ऑन 1। मैक्सिमम फाइल साइज, वैसे तो 10 MB बहुत बड़ी फाइल होती है, फिर भी आपको लगता है बच्चे की फाइल बड़ी हो सकती है तो आपका स्पेस खर्च नहीं हो रहा है, जितनी फाइल होगी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई होगा, तो आप 100 MB चूज़ कर सकते हैं। और आप ये चूज़ करके इसको क्या बना देंगे, रिक्वायर्ड बना देंगे। दिस इज़ डन। अब तक हमने इस क्वेश्चन पेपर में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन बनाया है। पहला एक जनरल एंट्रीज का था जिसमें नेम सीरियल नंबर था। सेकंड MCQ था जो ऑटो चेक होने वाला है, उसमें हमने मार्किंग डाल दी है। थर्ड पोर्शन में हमने केवल एक सिंगल क्वेश्चन डाला है, दैट इज द लिंक टू द क्वेश्चन पेपर। हेयर स्टूडेंट विल अपलोड द फाइल एंड दैट विल बी चेक्ड मैनुअली ऑन द कंप्यूटर, राइट। हम एक बार इसको देखते हैं, प्रीव्यू करेंगे कि बच्चे को लिंक किस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं अपना पेपर, और जब आप प्रीव्यू करेंगे तो मेरे को फटाफट से इसको फिल करना होगा। मैं इसको फिल कर देती हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेगा उसको ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी मैं रेंडमली कुछ भी फिल कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये गलत हो सकता है। मैं केवल मुझे आपको दिखाना है कि लिंक कैसे अपीयर होगा। जैसे हमने ये पार्ट क्लिक कर लिया, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इस तरह से बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर का लिंक आएगा। जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा बच्चे के सामने, राइट। इसको देख के वो अपनी आंसर शीट लिखेगा, वापस फॉर्म में आएगा और अपनी जो स्कैन फाइल उसने बनाई है उसको ऐड फाइल पे क्लिक करके क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। इज दैट क्लियर? तो हमने ये सारे पार्ट्स अपने कर लिए हैं। इसमें हमने एमसीक्यू भी दिया है, डिस्क्रिप्टिव भी दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है इसको हमें जो बच्चों की आंसर शीट है उसको डाउनलोड करके चेक कैसे करना है। So now you are done with the question paper. It's the time to share it with the students. You know how to send it. Click on send button. If you want to mail, give the email ID, but I will prefer to WhatsApp or on to share the link on class group. Click on this button, shorten the URL, copy the URL and open your WhatsApp and share the link with the class group, right? Or you can share it in your Google Classroom also. After sharing, students will attempt the test and upload their files. In our next video, we will see how to download the students' response and how to check it. तब तक के लिए thank you. Have a nice day.